lovely session with Satish Sharma ji. And before I begin, I would really request everyone to put on their videos. This is just a mark of respect to the speaker, right? So if you can put on your videos, it'll really be nice, if possible. And you can take 1 or 2 minutes if you want to adjust something before you put on your videos. That's okay. So Jai Gurudev, welcome everyone to this lovely health filled session that we're going to have with Satish ji. So who is Satish ji now? Okay, so now good question, yeah. So Satish ji, can I call you Satish for the purpose of the session? Okay, Satish. Yeah. Uh, एक second. So Satish or Satish ji is a very well-known health YouTuber. He's got thousands of followers. I think he's got 18K followers already on his YouTube channel called Satish Sharma Yoga Health Yoga, something like that. Yeah. So Satish will tell us more about it. He has got such a big fan following, that too because he is a very hatke health and a fitness expert. He talks about tips and he'll give you a lot of these techniques and a lot of pranayam and yoga asanas for good health and things that we usually maybe have heard but are not cognizant of, or things that we probably not know now but so simple to follow. I personally have been following Satish ji for some time and I'm really impressed by his tips and whatever he shares, those videos that he makes. Satish ji is a very committed, a very responsible AOL devotee. He's an Art of Living follower, follows Gurudev very closely. He's a very committed volunteer. He's done a lot of seva. He's done a lot of seva projects. Professionally, he's a hotel employee. He works with the hotel industry. He's holding a senior position there. And his daughter is also intuition student, right? So we keep troubling Satish ji, khushi se ye puchwa do, all that. So very committed family, lot of grace. And Satish ji has also trained a lot of employees in the corporate sector across different fields. And just to name a few, I think he's trained the medical field really heavily. So he's trained across the Indian Medical Association, yeah, IMA, then hospitals like Apollo Hospital, Fortis Hospital, then Ulhasnagar Medical Association, then Lupin Pharma that specializes in cancer specialty medicine production. Then he's also been a very active part of Rotary Club of Ulhasnagar. He's trained and interacted with the Rotary District, then Rotary Club of Sapna Garden, then Inner Wheel Club Mumbai, and also the financial industry, right? So financial industry really needs all of this. So HDFC mutual funds, DSP mutual funds, just to name a few. And the list is endless, right? So without much delay, I'll hand it over to Satish ji. And Satish ji, I think things that we'd like to know more about is, weight loss, things like acidity, acid reflux, stomach problems, bloating, joint pain, muscle pain, and things. And I think that oil thing that you tell us about, I think it's great, amazing information. तो आप जो हमें बताना चाहें सतीश जी, आप प्लीज बताएं. एंड सो वेलकम, हैप्पी टू हैव यू हियर टुडे. जय गुरुदेव एंड ए वार्म गुड इवनिंग टू एवरीवन. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन माय हेल्थ एंड हैप्पीनेस सेशन. एज जूही जी ऑलरेडी इन्फॉर्म मेनी थिंग्स. एज वी कैन से कि हमारा जो बॉडी है, और बॉडी इज जस्ट लाइक ए मोबाइल. मोबाइल को वी आर यूजिंग डे एंड नाइट कंटिन्यूसली, effortlessly. Without mobile we can't survive. This is our lifestyle right now. Same way our body is also like a mobile. So in every 3-4 hours we need some plug-in, like body को charge करना पड़ता है. And you are in office or you are at home, working, anything. So charging is very important. Charge करना कैसे है? Pranayam. So lots of my technique is on the pranayam, that is on breathing technique, कि अपने प्राण ऊर्जा को शरीर में कैसे भरना है. देखो एक चीज तो हम सब जान लेते हैं, एज यू नो, कि बॉडी इज देयर. हमारी सबकी पहचान है, जूही जी का है, मेरा है, सतीश शर्मा, आपका भी नाम है. बट ये नाम तब तक है जब इसके अंदर आपका ब्रेथ है. इफ यू हैविंग दैट एनर्जी इन दैट बॉडी, प्राण, प्राण शक्ति बोलते, प्राण ऊर्जा. तो वो प्राण ऊर्जा के लिए हमें काम करना बहुत जरूरी है. वी गो टू द जिम. आई एम ऑल्सो डूइंग जिम, योगा, मेडिटेशन, एवरीथिंग. बट आवर बॉडी नीड्स लॉट्स ऑफ प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा. एंड प्राण ऊर्जा यू कैन गेट विथ ए प्रॉपर ब्रीथिंग टेक्निक, जो कि मेरे सेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. एंड मुद्रा प्राणायाम, मुद्रा इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी बॉडी बोलते हैं ना 5 तत्वों में बनी है, जल थल अग्नि वायु आकाश. तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं बॉडी के अंदर बैठे, उनका ये हाथों में ही बोलते हैं ना पूरी मैजिक है. जैसे थंब, ये हमारे बॉडी के
फायर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारी बॉडी में जो अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट्स को, ये हमारे एयर एलिमेंट्स को, फर्स्ट फिंगर वायु को रिप्रेजेंट करता है, एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी। रिंग फिंगर जो है ये हमारे अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एंड द स्मॉल फिंगर वाटर एलिमेंट्स। तो इन मुद्राओं को हम अपने शरीर के अंदर इसको एक पर्टिकुलर ब्रीथिंग के थ्रू बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बॉडी को बहुत हील कर सकते हैं। वो एनर्जी है, और वो एनर्जी आपको खुद ही पता चलेगा आप जब 15 से 20 मिनट तक मुद्राओं के द्वारा, विथ मुद्रास, if you do the particular breathing technique and pranayam, so lots of energy will going to come in your body and you feel very much energetic without taking any type of like tablets and all this thing. So my workshop is basically on this, on the pran shakti, and most important thing, some health tips. जैसे कि जूही जी से आज ही बात हो रहा था मेरा कि पहले जब हम डॉक्टर्स के पास जाते थे, आपको याद होगा बचपन में, तो सबसे पहले हमें डॉक्टर्स बोलता था आपकी जबान को दिखाओ, शो योर टंग, और हम ऐसे दिखाते, फिर डॉक्टर्स पे टॉर्च मारता था। आई होप कि कुछ लोगों को याद होगा। तो टॉर्च टॉर्च के थ्रू देखता था, फिर वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता था, ये प्रॉब्लम है। तो हमारे शरीर का जो बोलते हैं ना कि एनर्जी जो है बॉडी का, हमारी अगर तबीयत ठीक है नहीं है, वी आर वेल फिट एंड फाइन, और वी आर having some problem, everything represents on our tongue. Tongue is the most delicate parts of our body which makes you, whether you are fit, you are not fit, you are having viral fever, everything. So same way we are having one beautiful technique ki how to absorb the energy. Latest I have just day before yesterday I have uploaded health benefits of taking sunlight. sun की energy को अपने शरीर में कैसे absorb करें, कैसे उतारें। देखो सन एक ऐसी है ना, यू हैविंग लॉट्स ऑफ सोलर एनर्जी, तो वेन एवर यू फील कि योर बॉडी इज नॉट प्रोटेक्टिंग यू, आर नॉट सपोर्टिंग यू, आपकी शरीर आपके ऊर्जा के साथ काम नहीं कर रही है, तो सबसे बड़ा जो मेडिसिन है, दवाई है, वो है नेचुरल, प्रकृति के साथ आपको जाना है, और वो है सूरज। जैसे ही सूर्य उदय होते हैं सुबह के समय, आपको सूर्य उदय होने के बाद उस रोशनी को 2 घंटा आप को ले सकते हो। 2 घंटा मतलब कि सूर्य की 2 घंटा उदय के बाद, उसके बाद नहीं, द फर्स्ट 2 आवर्स, एंड यू हैव टू टेक अप टू 10 मिनट्स। कैसे लेना है मैंने वो वीडियो में बहुत डिटेल में बताया, बट यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से ऐसे फैला लेना है, और चेहरे को थोड़ा ऊपर की तरफ, सपोज सूरज ऐसे है तो आपको ऊपर की तरफ, और जबान को बाहर निकालना है ऐसे। Your tongue should be totally out as much as you can, very comfortable and with a proper breathing. कोई एफर्ट नहीं लेना है ब्रेथ में, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, ऐसे जबान पूरा बाहर, और सूर्य जहां पे है सामने, वहां से पूरी एनर्जी को आपको जबान को बाहर लेते हुए यू हैव टू एब्जॉर्ब द फुल एंड फाइनल। आपको कम से कम 5 मिनट तक इस तरह से रखना है। सेकंड है उसका, फिर आपको जो आपकी बेली बटन है, आप आ जाओगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप एक्सपोजर कर सकते हो, यहाँ पे आपके नेवल के यहाँ पे आपके कपड़े को थोड़ा ऊपर करके यू कैन जस्ट टेक द, जितना हो सके उतना 10 मिनट तक यहाँ पे करना है। बिकॉज सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे आपकी सब पेट में पैनक्रियाज, आपकी लिवर, आपकी किडनी, सब चीज यहाँ होता है। तो उसको भी सूर्य की रोशनी जैसे ही मिलती है, उसका मिरेकलस बेनिफिट होना है आपके। सेम डे यू विल फील वेरी एनर्जेटिक। कैंसर, आपको पता है कैंसर अभी आम बीमारी होते जा रही है, तो हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो रेडिकल्स होते हैं, उनको भी ये काफी पेनिट्रेट करता है। और विटामिन डी ही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे, देखो बचपन में हमने पढ़ाई किया हुआ है, यू नो एवरीवन, कि आवर प्लांट्स through photosynthesis, through the help of the sunlight, through photosynthesis, they prepare their own clean vegetables and everything, food and everything. That's the thing, कि same thing applies in our body also. If you will see long back, जब पुराणों में आप देखोगे तो सब ऐसे तप करते थे, तपस्या करते थे, जिसको बोलते हैं मेडिटेशन, सालों साल तक बिना खाना खाए, बिना पानी पिए। रीजन यही था, दे आर गेटिंग द नेचुरल एनर्जी, नेचुरल फूड फ्रॉम द सनलाइट। वंस यू विल टेक दैट सनलाइट ना, आप यकीन मानो आपकी जिंदगी में बहुत ही मिरेकल हो जाएगा। प्रैक्टिस बना लो, सुबह अगर टाइम नहीं है तो शाम को कभी करना है, सेम वही
सूर्यास्त सनसेट के 2 घंटे पहले वाली जो रोशनी आ रही है उसे लेने का प्रयास करो। 15 मिनट्स आगे और 15 मिनट्स पीछे। बट अगर पीछे नहीं ले पा रहे हो तो मेन चीज है यू जस्ट दिस प्रोसेस, टंग को बाहर करके चेहरे को ऊपर, सांसों को आने देना है और बेली बटन के पास। ये अगर आप डेली रूटीन में लेके आ रहे हो, यकीन मानो आप बहुत ही जल्दी सेहतमंद रहोगे, बीमारी नहीं होगे, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है जो पीरियड चल रहा है। तो सन बात करना बहुत जरूरी है। एक और है मेरा हेल्थ टेक्निक बेली बटन के ऊपर। सबके शरीर में मेल फीमेल जो भी हैं, एटलीस्ट 72,000 नाड़ियां, 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर की जो है वो हमारे बेली बटन से, हमारे नाभि से जुड़ी हुई है। हमारे घर में जैसे बहुत सारे फैन है, एसी है, लाइट है, सब वायरिंग होती है, तो ये भी वायरिंग है हमारे पूरे शरीर के अंदर, जिसको वेंस बोलते हो, नस बोलते हो। लेफ्ट साइड में 36,000, राइट साइड में 36,000। अभी 72,000 नाड़ियों का जो जंक्शन है वो है नाभि के पास, बेली बटन यहाँ पे। आपको फिर से बता रहा हूं मैं, ये पोर्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये बेली बटन नाभि के पास हमारी सारी 72,000 नाड़ियों का एक संगम है, जहाँ पे आपको पता है जब हम गर्भाशय में होते हैं, ठीक है, माँ के पेट से जुड़े होते हैं, एट दैट टाइम वी आर गेटिंग ऑल फूड्स और नरिशमेंट, जो भी खाना वगैरह मिलता है माँ के पेट से जो ट्यूब जुड़ी रहती है नाभि के द्वारा ही हमें मिलती है, नरिशमेंट मिलती है। और फिर हम बाहर आते हैं, इस प्रकृति में आते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये नाभि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे करती है? जंक्शन वही है, सब नसों का, सारे वेंस, सारी नाड़ियां यहीं पे आके मिलती, संगम है, पावर हाउस। हमारे घर में जैसे क्या होता है, सब जगह लाइट चल रहे हैं, फैंस चल रहे हैं, लेकिन एक जगह होता है बटन ट्रिप करने का, मतलब मेन जो पावर हाउस होता है। तो हमारे शरीर का, ब्रेन का, इसका उसका, सारी नाड़ियों का जो पावर हाउस है वो नाभि के पास है। तो नाभि में इतनी शक्ति है कि उसे हमें बहुत ही लुब्रिकेट करके उसको फ्लेक्सिबल करना होता है। आप देखते हो हार्ट की नसें ब्लॉक हो जाती है, उसका रीजन बहुत सारे होते हैं। ब्रेन में हैमरेज होता है क्योंकि वहां की नसें तो और बहुत पतली पतली होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर, हार्ट के ऊपर बहुत पतली नसें जाती हैं, हार्ट के नीचे बहुत ब्रॉड नसें जाती हैं। तो उन सब को लुब्रिकेट करने के लिए यू हैव टू ऑयल बेली बटन। बेली बटन में रोज आपको नाभि में आपके तेल डालना चाहिए, और उसे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत सॉल्व होगी। इसका एक वीडियो है मेरे यूट्यूब के ऊपर, सतीश शर्मा योगा, और मोर देन आई थिंक 5,40,000 लोगों ने व्यूज किया है उसको, एंड 35 कंट्रीज में वो वीडियो के लोगों ने बेनिफिट लिया। यू कैन सी द ऑल द कमेंट्स एंड एवरीथिंग। अब करना क्या आपको, अब वो जो नाड़ी है नाभि, अभी समझो किसी को बहुत यहाँ पे पेन होता है, हड्डियों में पेन होता है, आर्थराइट्स है, घुटने में पेन है, कमर में होता है, बैकबोन में, जो आम बात है, तो उसके लिए आपको कैस्टर ऑयल यूज करना है। कैस्टर ऑयल मीन्स कि अरंडी का तेल बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। अरंडी का तेल आपको नाभि में लगाना है। कैसे लगाना है? ड्रॉपर आप ले सकते हो, छोटी सी बॉटल, उसमें उस अरंडी के तेल को आप डाल लो, और रात को जब भी आप सोने जाते हो, जस्ट बिफोर गोइंग ऑन बेड, उस ड्रॉपर से 4 बूंद आप यहाँ पे नाभि में डाल सकते हो, और उसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, आपने सपोज यहाँ पे आपने डाला, और फिर उसको क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आप 1 मिनट तक उसको राउंड में रखोगे, और एंटी क्लॉकवाइज फिर 1 मिनट तक। आपको डालना है नाभि के अंदर थ्रू ड्रॉपर। ड्रॉपर से आपको नाभि के अंदर डालेंगे तो कैस्टर ऑयल इज द पेन किलर, नेचुरल पेन किलर, और हमारे सारे बोन्स को लुब्रिकेट करता है। तो जिसको भी नी का प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द है, वो तुरंत उनको आराम मिलेगा। आप 4 से 5 दिन में ही देखोगे, तो बहुत सारे जो आपके बॉडी में पेन्स है, जॉइंट्स के अंदर, जैसे एल्बो के यहाँ पे, नेक के यहाँ पे, कमर में, बैक पेन एंड ऑल, उससे बहुत ही आराम मिलेगा अगर आप कैस्टर ऑयल यूज कर रहे हो। सेकेंड आते हैं कि लीवर के लिए। देखिए लीवर भी हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, तो उसको भी काफी एनर्जेटिक, उसको भी काफी लुब्रिकेट करना जरूरी रहता है। उसके लिए यू कैन यूज द ऑलिव ऑयल। स्किन के लिए एवरीबडी वांट द ग्लोइंग स्किन, जिसको स्किन बहुत ड्राइनेस, अभी तो विंटर सीजन ऑलरेडी स्टार्टेड, सो कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट ऑप्शन। जिनकी स्किन बहुत ड्राई है, लिप्स में बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं, सूखा सूखापन हो जाता है, तो दे कैन यूज द कोकोनट ऑयल। और जिनको स्किन में थोड़ा ग्लो चाहिए, मतलब शाइनिंग चाहिए, और थोड़ा ऑयली रखना है स्किन को, तो उनके लिए है आलमंड्स ऑयल, यानी कि बादाम। बादाम रोगन लगाए तो बहुत अच्छा है।
तो स्किन के लिए ये हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आजकल हम देख रहे हैं व्हाइट पैचेस, जिसको विटिलिगो बोलते हैं, सोरासिस भी है। विटिलिगो सोरासिस का कि विटिलिगो का बहुत इजीली ट्रीटमेंट है ही नहीं। मतलब आयुर्वेदा में भी ऐसे है कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं, इवन एलोपैथिक में, और डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे तो बोलते हैं ला इलाज बीमारी है, और बहुत ही टाइम लेता है। इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ दैट थिंग। तो विटिलिगो जिन्हें हुआ है, दे कैन यूज द नीम का तेल, नीम का ऑयल। नीम का ऑयल अगर आप लगा रहे हो तो आपके बॉडी में, जैसे जहां पे विटिलिगो वहां नहीं लगाना है, सेम थिंग आपको ड्रॉपर से आपके बेली बटन में यू हैव टू पुट 3 to 4 ड्रॉप्स, एंड यू कैन सी सम चेंजेस। लाइक विटिलिगो का जो पैच है वो कम होना शुरू हो जाएगा, हील होना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ आपको मुद्रा प्राणायाम और ये करना है। जी, आई थिंक आपका फ्रीज हो गया है फ्रेम। फ्रीज हो गया। थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबल हो रहा है शायद आपका। ओके, अभी अभी आप कुछ बोलो। आ रही आवाज, आ रही मेरी? यू कैन अभी हियर आ मी? रहा है, अभी दिख भी रहे हो, आ भी रहे हो। ओके। या नाउ इट्स गुड। सो एज आई टोल्ड यू कि जहां पे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन के अंदर व्हाइट पैचेस, जैसे विटिलिगो हुआ, जिनको सोरेसिस है, तो दे कैन यूज द नीम का ऑयल। नीम का तेल आप ले सकते हो। नीम के तेल को आपको सेम 3 to 4 ड्रॉप्स आपके बेली बटन में आपको यूज करना है जब आप रात को सोने जाते हो। और लाई डाउन जस्ट लाइक दिस और बैक एटलीस्ट 10 मिनट्स, देन as per your comfortable, if you want to lie down the left or right, but left is the best position while sleeping. So vitiligo can be cure, psoriasis जो है वो हो सकता है अच्छा। आलमंड ऑयल से आपकी स्किन काफी ग्लो होगी। बोन्स के लिए जैसे मैंने बताया कि कैस्टर ऑयल है। लिवर के लिए ऑलिव ऑयल, जिनकी ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहती है, बहुत हाई है, तो दे कैन यूज द सिसमी ऑयल। सिसमी ऑयल भी बहुत अच्छा है जिनकी बीपी बहुत हाई है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आपको लगता है मैं कंफ्यूज हूँ, ये यूज करूं या वो यूज करूं, तो मैं पर्सनली आई यूज द मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल इज अ वेरी रिच विच क्योर मेनी प्रॉब्लम्स। जैसे कि लेडीज लोग के भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं ड्यूरिंग पीरियड, दे फील द क्रैम्प्स एंड ऑल दिस थिंग, पेन। किसको एसिडिटी की तकलीफ है, कॉन्स्टिपेशन की है, तो दे कैन यूज द मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल यानी कि कच्ची घानी का तेल, सरसों का तेल जिसको हम बोलते हैं, द प्योर, नॉट द फिल्टर रिफाइन एंड ऑल दिस थिंग। यू हैव टू गो फॉर द कच्ची घानी का प्योर ओरिजिनल तेल, जो कि इजिली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में आपको। तो मस्टर्ड ऑयल बहुत सारी चीजों को हमें हमें पहले बहुत बहुत एनर्जेटिक फील कराता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, रात को आप सोते हो, काफी टाइम सो लिया, सुबह हम उठे तो भी ऐसा लगता है यार और टाइम मिलना चाहिए था, और फिर पूरा दिन लेथार्जी लगता है। इट हैपेंस बिकॉज योर नर्वस सिस्टम, आपकी जो नाड़ियां हैं वो पूरी तरह से बोलते हैं ना रिलैक्स नहीं हुई, शिथिल नहीं हुई है। तो उनको शिथिल करने के लिए यू कैन यूज द मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल, इनफैक्ट मस्टर्ड ऑयल है, मैं यूज करता हूँ आफ्टर शावर। शावर लेने के बाद अगर आपके बेली बटन में थोड़ा आप लगा लेते हो तो बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी के अंदर। मतलब यू कैन फील एट दैट टाइम विद इन 25 मिनट्स ओनली, यू फील कि समथिंग यू हैविंग फ्लो ऑफ एनर्जी इज मूविंग लाइक दिस वे। तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑयल का बाकी बहुत डिस्क्रिप्शन आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, ऑयलिंग नेवल मेथड, मेरिक्लेस बेनिफिट। सो आप सभी, एक तो जैसे मिला कि सनलाइट लो, और दूसरा ऑयलिंग बहुत इजी है, ये तो सो के ही करना है आपको, उसमें कोई मेहनत करना है नहीं। और सुबह आप उठे, ऑफिस जा रहे हो, गार्डन में हो, 5 मिनट करना है, या वेरेंडा में आपके टंग को बाहर निकाल के थोड़ी लाइट्स ले सकते हो। नहीं टाइम है तो शाम को, तो इतना तो हम कर सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है। सो वी कैन गो फॉर सम प्राणायाम ऑल्सो। मुद्रा प्राणायाम। मुद्रा प्राणायाम में एज यू नो कि नाउ इट इज लॉट्स ऑफ पीपल फीलिंग विद द एसिडिटी प्रॉब्लम। एसिडिटी क्यों होता है? क्योंकि देखो आप जो खाना खा रहे हो, खाना इंपॉर्टेंट वो नहीं है, खाना का पचना, डाइजेस्ट होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो टुडे आई विल शो यू वन टेक्निक बिफोर फूड। खाना खाने के पहले आपको 2 मिनट वो प्राणायाम करना है बिफोर फूड, यानी खाना खाने के पहले। देखो हम खाना खाते हैं तो कैसे प्लेट को साफ करके आता है, आपके पास सब खाने आते हैं, तो हमारी नाड़ियों को भी साफ करना होता है। हमारे फूड जो होती है जैसे बॉडी के अंदर जाता है, आपने देखा होगा बचपन में या अभी भी, ऊपर से चक्की में गेहूं डालते हैं, नीचे वो पीसना चालू करता है और फिर आटा निकलता है, राइट? ऊपर से कोई भी चीज डालो, गेहूं, जवारी, भाकरी, जो आप ऊपर से डालते हैं, फिर वो नीचे आके ग्राइंड होता है, फिर उसका आटा निकलता है। हमारी बॉडी भी वैसे ही है।
ये हम मुंह में डालते हैं, नीचे एक प्रोसेस चालू होता है। प्रोसेस ये होता है कि मैंने जैसे बताया यहाँ पे, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे हमारा जो है, जैसे ही आप खाने का पहला नेवाला डालते हो, व्हेन यू पुट द फर्स्ट बाइट इन योर माउथ एंड व्हेन यू स्टार्टेड च्यूइंग, जैसे हम चबाना चालू करते हैं तो बॉडी के अंदर जठर अग्नि उत्पन्न होती है। यहाँ पे जठर अग्नि का काम क्या है, जो खाना आ रहा है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको ब्रेक करता है, फिर उसको हर एक चीज को अलग अलग जगह, जिसको जहां जो चाहिए उसको पहुंचाता है। जो वेस्टेज है उसको किडनी के लिए देता है, भाई यू डू योर वर्क एंड सेक्रेट द थिंग्स वेस्टेज के लिए, और सब पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करता है। अब जठर अग्नि को और पावरफुल करने के लिए क्या है, यू हैव टू डू 2 मिनट्स का ब्रीथिंग टेक्निक। जैसे अभी सपोज मुझे 2 बजे खाना खाना है, तो मैं क्या करूंगा, 1:55 को 5 मिनट पहले ये प्रोसेस कर लूंगा, और उस प्रोसेस के बाद आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही मेरी? हाँ, तो वो प्रोसेस कैसे करना है, जैसे कि आपको 2 बजे खाना खाना है, 1:55 को आपको ये प्रोसेस करना है, अपनी जठर अग्नि को और भी पावरफुल करना है। जैसे कि मोबाइल यूज करते हैं, अगर वाईफाई वीक है तो हमें सिग्नल नहीं मिलेगा, मोबाइल में नेटवर्क कम है तो आप बात नहीं कर सकते हो। तो हमारी जठर अग्नि अगर वीक है, बहुत स्लो है, तो जो भी खाना नीचे जाएगा वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा। उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम एक प्रोसेस करेंगे, आई वुड लाइक टू एवरीवन लेट अस डू, ताकि आप लोग को थोड़ा इजी हो जाए। हमें भी करना क्या है, जठर अग्नि हमें जैसे उसको ज्यादा स्ट्रांग करना है, उसके लिए हमें क्या काम करना है। देखिए, राइट साइड जो है ये है सूर्य नाड़ी, लेफ्ट साइड है चंद्र नाड़ी। तो हमें ये नाड़ी को एक्टिवेट करना है, कौन सी, राइट साइड वाले के लिए। तो राइट साइड के लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड के नोज को बंद करना है, यू हैव टू सिट वेरी स्ट्रेट, स्पाइन शुड बी इरेक्ट, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अंगूठा जो है, ये अंगूठे से हम लेफ्ट साइड की नाड़ी को बंद कर देंगे यहाँ से, और राइट साइड से हमें सांस लेना है, और राइट साइड से ही एक्सेल करेंगे। वी विल गोइंग टू इनहेल फ्रॉम द राइट एंड एक्सेल फ्रॉम द राइट। लेफ्ट बंद रहेगा, लेट अस डू एवरीवन, जस्ट क्लोज योर आईज, spine should be erect, inhale from the right side as much as you can, fill the lungs, पूरा lungs को भरना है, and exhale from the right, again inhale from the right and exhale from the right, inhale from the right as much as you can and exhale from the right, inhale from the right and exhale from the right. Continue the process, keep inhaling and exhale, keep inhaling and exhale, inhale and exhale, relax. तो ये आपको करना है, बहुत इजी प्रोसेस है। आप ऑफिस में हो, घर पे हो, बस 2 मिनट करना है आपको। 2 मिनट किया एंड यू स्टार्ट देन। देखो, एक चीज अगर आप देखोगे, माइट भी सबको फील हुआ रहेगा, जैसे हमने ये प्रोसेस किया ना, यू विल फील सम सलीवा ऑन योर माउथ, जिसको लार कहते हैं। आई होप कि सबको थोड़ा आया रहेगा मुंह के अंदर, क्योंकि जैसे ही सूर्य नाड़ी हमारा एक्टिवेट होता है ना, सलीवा जो है वो ऊपर की तरह आता है, स्पेस बनाता है। इसोफेगस जो है, इसोफेगस से होते हुए हमारी पाइप पूरी क्लियर होती है, और सलीवा यानी कि उस सलीवा के साथ जब आप फूड को चबाते हो, खाते हो, तो वो बहुत जूसी टाइप फूड जब अंदर जाता है तो डाइजेस्ट बहुत इजी होता है, और इससे एसिडिटी आपको कभी भी नहीं होगी। एसिडिटी के लिए तो वैसे भी बहुत सारे प्राणायाम है, बट ये डाइजेस्ट हमारा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, यानी बहुत अच्छा। आप इसे कब कर सकते हो, क्वेश्चन ये है कि हम क्या कितनी बार करें। आप जितनी बार खाना खाने जा रहे हो उतनी बार करना है। आपने ब्रेकफास्ट करना है, हम खाना खाने के पहले हाथ धोते हैं ना, वी वॉश आवर हैंड्स एंड वी ईट द फूड, सेम चीज ये हमें क्लीन करना है। क्या क्लीन करना है, हमारी इसोफेगस जो है, हमारी फूड की जो नाड़ी है, राइट साइड की, राइट साइड यानी कि आप ध्यान रखो ना, राइट साइड, लेफ्ट नहीं खोलना, लेफ्ट से कुछ नहीं होना है, राइट साइड, क्योंकि ये सूर्य नाड़ी है। सूर्य नाड़ी यानी कि हमारी बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। आप यकीन मानो, आज से करके देखना, आप जो भी खाना खा रहे हो ना,
उसको पूरा पाचन शक्ति में एकदम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। देखो क्या होता है, घर में अगर लाइट कम है, आप क्या लगाते हो, इन्वर्टर लगाते हो बैकअप के लिए कि लाइट चला गया। मतलब ये हमारे बॉडी के लिए बैकअप सिस्टम है। बॉडी अपना नेचुरली इंसेंटिव जो है वो उसको, जठराग्नि अपना काम करेगा, लेकिन वो ज्यादा पावरफुल से काम करेगा कब, व्हेन यू डू दिस। आप ध्यान देना, आप जैसे ही करोगे ना तो आपके मुंह में बहुत सारे लार आएंगे, व्हाट वी कॉल द सलीवा। सलीवा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू डाइजेस्ट द फूड। इसलिए बोलते हैं ना कि खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी नहीं पीना है। दैट इज द रीजन, बिकॉज जो सलीवा है उसके साथ फूड जाना चाहिए। अच्छा, अब क्या है, आपने ये कर लिया और फिर खाना खा लिया। आपको करना है 2 मिनट, एटलीस्ट 2 मिनट्स। 2 मिनट्स ही करना है। अब 2 मिनट काउंट नहीं करना है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कब तक करना है। यू विल फील, ब्रेन को बोलना है आपको कि 2 मिनट करना है मुझे। ब्रेन खुद ही आपको मैसेज देगा। ओके, ब्रेन के ऊपर आ जाए, हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। ठीक है। एक क्वेश्चन है सतीश जी, ये चीज रिपीट करना है खाना खाने के बाद? नहीं, खाना खाने के बाद रिपीट नहीं करना है। ये आपको खाना खाने के पहले ही करना है, खाना खाने के बाद ये नहीं करना है। खाना खाने के बाद मैं आ रहा हूँ कि आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में सबको पता है कैसे बैठना है। वज्रासन में आपको इस मुद्रा में बैठ जाना है, वायु मुद्रा में। मैं शो करता हूँ, आई विल जस्ट शो यू कि कैसे करना है। ये देखिए, ऐसे आपको बैठना है। ये फर्स्ट फिंगर जो है अंगूठे के नीचे आ गया, और फिर ऐसे आपको बैठना है, लाइक दिस वे, इस तरह से। खुशी, आपको इस तरह से बैठना है। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप इस तरह से बैठ सकते हो। लाइक दिस? फर्स्ट, या फर्स्ट फिंगर एंड थंब आपका नीचे, बस इस तरह से बैठना है। वेरी इजी थिंग। बाकी आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम था, जो फूड का जो था, वो आपको एज यूजुअल इस तरह से आपको बैठना है। ये आप कितनी बार करोगे, 2 मिनट, कोई काउंट नहीं इसका, बट एटलीस्ट 2 मिनट्स तो करना ही करना है। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जठराग्नि हमारी ओपन हो जाती है, और फिर आपको फूड खाना है। तो ये आपको है खाना खाने के पहले। अब आते हैं कि आज के डेट में मैंने देखा है एसिडिटी की बहुत समस्या होती जा रही है। मतलब एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स, गले में यहाँ पे जलन होता है, छाती में जलन होता है, जो भी खाया ऐसे लगता है यार कि कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो उनके लिए क्या करना है, उनके लिए उनको करना है शीतली प्राणायाम। आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज द शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम इज द प्राणायाम विच इज द कूलिंग सिस्टम फॉर आवर बॉडी। हमारे बॉडी को कूल करता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, वी यूज द कार एंड ऑल दैट, तो हम देखो बोनेट के यहाँ पे कूलन डालते हैं। कूलन क्यों डालते हैं? कूलन इस हिसाब से डालते हैं कि हमारी पूरी बॉडी कूल होनी चाहिए। तो बॉडी में जब हाइपर एसिडिटी कब बढ़ती है, जब आपका पित्त बढ़ जाता है। यू नो, पित्त आज आप समस्या हो गई है, लेकिन जिनका पित्त नहीं भी बढ़ा है उन्हें भी करना चाहिए शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम से क्या होता है, बॉडी में अगर कहीं पे ज्यादा पित्त बढ़ गया है तो वो बहुत ही स्लोली, ग्रेजुअली आपका जड़ से खत्म होगा। वो प्राणायाम जिनको एसिड की बहुत समस्या है, रोज इनको करना चाहिए। कब करना चाहिए? खाना खाने का और खाना खाने के पहले गैप रहना चाहिए 2 घंटे का, यानी पेट में ज्यादा कुछ नहीं रहे, ताकि कि वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। राइट नोज से ही ब्रेथ लेना है। जी हाँ, वो जो उन्हें पता है वो राइट से ही लेना है, लेफ्ट से नहीं लेना है। अभी मैं आ रहा हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ शीतली प्राणायाम, ये लेफ्ट नोज का यहाँ पे काम है। अब यहाँ पे क्या करना है, शीतली प्राणायाम जिन्हें नहीं पता है पहले वो बता दे रहा हूँ कैसे करना है। दोनों दांत जो है आपके, दोनों दांत इस तरह से होने चाहिए। ठीक है, आपस में इस तरह से टच होने चाहिए। और जो टंग है हमारा, दोनों दांत के बीच में होना चाहिए। यानी कि ये दोनों दांत है, ये ऐसे, सपोज ये लोअर और ये अपर दोनों आपस में, और फिर टंग को इसके बीच में रखना है, और फिर हमें मुंह से श्वास लेना है, और लेफ्ट साइड से एक्सेल करेंगे हम। मैं बताता हूं आपको, देखिए कैसे। आप लोगे तो देखो आपकी बॉडी में बहुत सारी ठंडी श्वास जाएगी। लेट अस स्टार्ट, सब करते हैं। क्या करना है, हमें अपने जीभ को दोनों दांत के बीच में रखना है ऐसे। ठीक है, इसके पीछे रखना है, ये जीभ को पीछे रखना है, दोनों दांत ऊपर नीचे, और हम मुंह से श्वास लेंगे। आपको देखो ठंडी श्वास आएगी। ठीक है, लेट अस डू एवरीवन, करते हैं सब जन। आंखें बंद करके भी कर सकते हो, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। हमें मुंह से सांस खींचना है, मुंह से ही लेना है, नाक से नहीं लेना है। पहले मैं सांस लेने के बताऊंगा, फिर छोड़ना बताऊंगा।
आ रही है सबको ठंडी श्वास? एवरीवन गेटिंग द कूल ब्रेथ, व्हाट इज कॉल्ड शीतली प्राणायाम। अब हमने मुंह से सांस लिया ऐसे, जैसे श्वास हमने लिया हमें एक्सेल करना है लेफ्ट से। देखिए अभी बता रहा हूं, लेफ्ट साइड से एक्सेल करना है, मुंह से श्वास, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल। वी हैव टू टेक द ब्रेथ फ्रॉम द माउथ, द पोजिशन विल बी lower teeth and upper teeth will be like this way and tongue in between the teeth, and you have to take the air from the open your mouth, not from the nostril, just from the mouth, suck the air and exhale from the left side। सांस हम मुंह से लेंगे और बाई नासिका से छोड़ेंगे। अब मैं आपको करके बता रहा हूं, करता हूं, ठीक है? फिर से सब करेंगे साथ में तो ज्यादा बेनिफिट होगा। कैसे करना है? हमने मुंह से सांस ले रहे हैं, दोनों दांतों को शीतली प्राणायाम करेंगे और एक्सेल जो करना है आपको लेफ्ट साइड से करना है। लेफ्ट साइड, राइट साइड बंद होगा, ये ध्यान देना है आपको। लेफ्ट साइड से एक्सेल करना है, लेकिन श्वास को वापस लेंगे नहीं, श्वास को मुंह से ही लेना है और यहां से एक्सेल करेंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए मुंह से लिया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल। चलो अभी सब साथ में करते हैं, लेट अस डू। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क मी। शीतली प्राणायाम, दोनों दांतों को आपस में टच, जबान आपकी दांत के पीछे, मुंह से सांस भरना है, राइट साइड बंद एंड लेफ्ट साइड से एक्सेल। Okay, now close your eyes. Let us do with full 100%. Take the breath from the mouth and exhale from the left nostril. Clear? Any question? Any doubt? जब सांस ले रहे हैं दांत नीच के, तब नोस्ट्रिल बंद करना है, राइट नोस्ट्रिल? नहीं, जब सांस लेना है तभी आपको नॉस्ट्रिल वगैरह कुछ नहीं बंद करना है, आपको सांस नॉर्मल लेना है। कोशिश ये रहे कि मुंह से आपको खींचना है, जैसे कि थोड़ा सांस यहां से भी जाएगा, नो इशू, बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एक्सेल जो है मुंह बंद, राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से ही जाना चाहिए। मुंह भी बंद, पूरा सांस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर जाना चाहिए। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप जब श्वास ले रहे हो, व्हेन यू आर इनहेलिंग, now close the right side and close your mouth, exhale from the left nostril. This you have to do at least 5 to 10 minutes। 5 से 10 मिनट अगर आप करते हो इसे, मिनिमम 5 मिनट्स तो आपको करना ही है। तो शरीर के अंदर जो आपकी हीट है, यानी कि बॉडी में जो एसिड है, एसिड एक्चुअली एसिड हमारे फूड पार्टिकल्स को भी हेल्पफुल होता है डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो छोटे छोटे ब्रेक्स को करके उसको डाइजेस्ट करें। लेकिन जब ज्यादा एसिड हो जाता है तो फिर वो रिफ्लेक्स होता है आपके यहाँ पे, ठीक है? और उसकी वजह से फिर बहुत सारी पित्त की समस्याएं, और फिर ज्यादा एसिड होने से क्या होता है, स्किन में पिंपल्स वगैरह भी आने चालू हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब बॉडी के अंदर एसिड ज्यादा है, हीट एलिमेंट्स बढ़ गया है, अग्नि तत्व बढ़ गया है, तो ये प्राणायाम बहुत ही कारगर है। आई होप किसको सबको एकदम समझ में आ गई है, मतलब लेना है आपको एंड एक्सेल। एनी क्वेश्चंस? दिस इज क्लियर? हाँ, शीतली प्राणायाम आपको जो करना है, व्हेन टू डू द शीतली प्राणायाम, मैंने बोला खाना खाने के 2 घंटे बाद या खाना खाने के पहले, मतलब खाना खाने या उसके गैप कम से कम 1.5-2 घंटे का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी आपकी जो है हीट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हीट को हम कूल कर रहे हैं। और खाना खाने के पहले क्या होता है, हमारी देखो, जो खाना खाते, जैसे हम खाना खाते हैं ना, बॉडी के अंदर हीट होती है। आई होप आपने अगर देखा होगा कि जैसे आप खाना खाते हो, अगर पंखे वगैरह चालू नहीं तो थोड़े पसीने या गर्मी चालू होती है। फूड प्रोसेस जब हमारा चालू होता है तो डाइजेस्ट, तो बॉडी के अंदर हीट होती है। इसके लिए ही हम अग्नि सार जो है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जो अग्नि तत्व है, उसको हम थोड़ा मेटाबॉलिक प्रोसेस को और स्ट्रांग करने के लिए प्रोसेस करते हैं। शीतली प्राणायाम जो करना है आपको खाना खाने के 2 घंटे बाद करना है, 2 आवर्स का गैप होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, मुंह में छाले आते हैं तो क्या हम शीतली प्राणायाम? बिल्कुल, मुंह में छाले इसकी वजह से आते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर आपके बहुत हीट हो जाती है। अग्नि तत्व तो जब शरीर के अंदर बढ़ जाता है तो मुंह के अंदर छाले, जैसे मैंने कहा कि चेहरे के आसपास भी बहुत सारे पिंपल्स और एक्ने, बहुत सारे से फोड़िस टाइप हो जाते हैं। इनफैक्ट जिनको अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है उन्हें तो जरूर करना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी मच इफेक्टिव। शीतली प्राणायाम इज वेरी मच इफेक्टिव फॉर द पीपल हैविंग द
पाइल्स का प्रॉब्लम, वो बहुत ही अडेप्ट करेगा अगर कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं। तो इट्स वेरी पावरफुल टेक्निक शीतली प्राणायाम। एनी मोर क्वेश्चन फॉर रिगार्डिंग दिस? आई थिंक एवरीवनस क्लियर फॉर दिस शीतली प्राणायाम। और दूसरा जो था हमारा फूड के पहले हमें क्या करना है 2 मिनट पहले, तो ये दोनों प्राणायाम हो गया। कितनी देर करना है? सी डिपेंड्स ऑन योर द बॉडी टेंडेंसी, बट व्हाट आई विल एडवाइज यू, मिनिमम 5 मिनट्स यू हैव टू डू, 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट आपको करना है। अगर आप 5 से 10 मिनट कर रहे हो, क्योंकि बॉडी हमारे है, हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, तो ये आपने तुरंत किया तुरंत नहीं होता, लेकिन 10 मिनट अगर आप कर रहे हो तो बहुत ही फायदेमंद, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बहुत ही अच्छा है ये करने के लिए। एनी मोर क्वेश्चंस? और वी कैन गो फॉर देन मुद्रा के लिए, कि बॉडी का आज के डेट में वेट का बहुत प्रॉब्लम है लोगों के लिए। सतीश जी, we can take questions later. I think let's move ahead. Questions last में ले लेंगे. ओके, सो नाउ वी विल गो फॉर वन मोर टेक्निक। व्हाट आई विल से कि आज के डेट में देखो, वात पित्त कफ, ये जो समस्या है, व्हाट टू डू फॉर डीप फेट क्रैक्स, आई विल जस्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग। वात पित्त कफ के ऊपर जाने के पहले मैं कहा जाता हूँ ब्रेन के ऊपर। हमारा जो ब्रेन है, देखो हमारे बॉडी को जो कंट्रोल कर रहा है वो कर रहा है ब्रेन, ठीक है। अभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसे अभी मैं हाथ ऐसे उठाया, ऐसे एक्शन किया, कोई ऐसे बैठा होगा या कोई ऐसे बैठा होगा, तो कोई ऐसे कर रहा होगा, तो ये सब ब्रेन हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि आपकी बॉडी कैसे कंफर्टेबल हो। अब क्या होता है कि आप अगर टीवी चैनल देखते हुए, न्यूज देखते हुए खाना खा रहे हो, जैसे आप खाना खाते हो ब्रेन मैसेज करता है बॉडी के अंदर कि एक काम करो सर, ये अभी खाना आ रहा है, किडनी अपना काम करो, हार्ट अपना काम करो, पैनक्रियाज अपना काम करो, उसको डाइजेस्ट करो। ये ब्रेन मैसेज देता है इंटरनल बॉडी को। ये सबके साथ होता है। हमारे शरीर को, हमारे इंटरनल पार्ट्स को भगवान ने इस तरह से बनाया है कि एवरीथिंग टेक इन अ नेचुरल प्रोसेस। नाउ प्रॉब्लम इज दैट कि यू आर वाचिंग द न्यूज चैनल और यू वाचिंग द मूवी, सो ब्रेन इज एंगेज इन watching the TV, right? Brain is engaged watching the TV, brain watching news, brain watching TV, brain watching the climax, and you eating the food. अब ब्रेन जो है वो साक्षी भाव किसको देख रहा है? टीवी को देख रहा है। आप सामने टीवी देख रहे हो, एब्जॉर्ब क्या कर रहा है टीवी, आप खाना क्या खा रहे हो ब्रेन को पता ही नहीं है आप क्या खा रहे हो, डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो। तो ब्रेन मैसेज क्या देगा कि डाइजेस्ट हम क्या करें, हम खाना क्या खाएं। अब आप अगर खाने को देख के, उसके टेक्सचर को देख के खा रहे हो, सपोज दाल है, दाल तड़का, दाल के ऊपर मस्त एक मिर्ची है, उस मिर्ची को एंजॉय कर रहे हो आप, कोथिंबीर है या जो भी है सब्जी है, उसके कलर को आप महसूस करो, उसके एरोमा को फील करो, उस एरोमा के साथ देखो आप खाना खाओ, देखो क्या चमत्कार होता है। वो फूड आप कितना भी खाओगे बहुत ही बॉडी को पहुंचेगा, क्योंकि ब्रेन उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ब्रेन ने देखा कि इसने खाना खाया, उसने कलर खाया, ब्रेन फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को मैसेज करता है कि भाई अब तू अपने काम पे लग जा, इसको प्रोसेस में लेके जा, इसको डाइजेस्ट कर, इसको ये कर। वो हमारे अपने प्रोसेस में जैसे हम बात करते हैं, वो इंटरनली कनेक्ट ईच अदर। अब हमने खाना खाया, सामने टीवी है, मैं टीवी देख रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ भाई अभी जो केस चल रहा है, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट एनी करंट न्यूज, सपोज कोविड का हम लोग देख रहे हैं, या यूएसए का इलेक्शन देख रहे हैं, या फिर आर रिपब्लिक का भी चल रहा है, जो हम बहुत ही क्यूरियोसिटी से उसमें इन्वॉल्व हो गए, ब्रेन इन्वॉल्व हो गया सामने टीवी में। आप खाना क्या खा रहे हो उसको पता ही नहीं, तो मैसेज क्या देगा नीचे बॉडी को? कुछ नहीं देगा, और वो खाना फिर आपका डाइजेस्ट नहीं होता है, वो खाना वैसे ही बॉडी के अंदर पड़ा रहता है, फिर आप कितना भी ये करो बहुत एफर्ट लेना पड़ता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि आप खाना खाते हुए थोड़ा समय अपने फूड के प्रति देखो, उसको एरोमा को, कलर को, टेक्सचर को एंजॉय करो। एंजॉय खाते हुए यार 10 मिनट तो निकालना पड़ेगा, तो देखो आपकी बॉडी में जो खाना खाओगे बहुत अच्छा लगेगा और फैट नहीं होगा। अब आते हैं ब्रेन के ऊपर। ब्रेन ब्रेन के लिए देखो योगा उतना है नहीं, बट प्राणायाम जो है, टर्टल ब्रीथिंग प्राणायाम, इसका भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, टर्टल ब्रीथिंग प्राणायाम। आई होप कि टर्टल सबने देखा है। पता है टर्टल की जो लाइफ होती है, उसका जीवन लाइफ लॉन्ग एटलीस्ट 150 ईयर्स इज द मिनिमम, एंड अप टू 500 ईयर्स, यानी 150 साल से लेके 500 साल तक जिंदा रहते हैं कछुआ। सोचो आप कैसे जीते रहे, बिकॉज ऑफ, सबसे मेडिटेटिव प्राणी कौन है पता है आपको? सबसे ज्यादा मेडिटेशन करने वाला वो है टर्टल, क्योंकि टर्टल 1 मिनट के अंदर ना सिर्फ 3 या मैक्सिमम 4 ब्रेथ लेता है। कितना? 3 ब्रेथ लेता है।
in 60 seconds, just 3 to 4 breath. हम बहुत जो हेल्दी है, बहुत फिट एंड फाइन है, कोई बीमारी नहीं है, हम आम इंसान 1 मिनट में 16 ब्रेथ लेते हैं, 16 ब्रेथ, 16 बार लेते हैं, 16। टर्टल जो है वो सिर्फ 3 और 4 ब्रेथ लेता है। तो अपने ब्रेन को आप अगर इस तरह से टर्टल ब्रीथिंग में लेके जाते हो ना, तो हमारे लिए बहुत फ्यूल है। मतलब गाड़ी में जैसे हम पेट्रोल डालते हैं, आप कार में पेट्रोल डालते हो और गाड़ी चलाते हो, तो ब्रेन को भी पेट्रोल चाहिए रहता है, उसको एक एनर्जी चाहिए रहती है। हम जैसे ही आंख बंद करते हैं ना, सबसे ज्यादा अच्छा पता है किसको लगता है? ब्रेन को। ये दुनिया से शटर बंद, थोड़ा रिलैक्स होता है। वैसे जैसे आप आंख बंद करोगे, थोड़ा ऑक्सीजन रिलीज होगा आपको ब्रेन के यहाँ पे। तभी मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेन को हील कैसे किया जा सकता है। इवन इट इज गुड फॉर द वात, जिनको वात की तकलीफ है उनको भी ये प्राणायाम करना चाहिए। इट इज कॉल्ड टर्टल ब्रीथिंग प्राणायाम। बहुत सिंपल है। आपको देखिए ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठना है, दोनों हाथ को ऐसे कर लेंगे इस तरह से, और इसको आप ऐसे लैप के ऊपर बहुत ही आराम से कंफर्टेबली आप ऐसे रख सकते हो, इस तरह से। ठीक है। रीढ़ की हड्डी आपकी ऑफकोर्स एकदम सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। अब करना क्या है? अब आपको एक ब्रेथ को ना 4 ब्रेक करके लेना है। मतलब मैं बता रहा हूं अभी, जैसे भी मैंने सांस लिया और छोड़ दिया, ठीक है, हम ऐसे ही लेते हैं। अब इसको ही हमें 4 काउंट में लेना है, और यू कैन टेक देन 3 काउंट, बट आई विल एडवाइस गो फॉर द 4 काउंट। ओके। अब करना कैसे है? हर एक ब्रेथ को हम थोड़ा सा लेंगे, फिर उसको रोक के रखेंगे। रोकने की कैपेसिटी सबके अपने ऊपर है। मिनिमम आप 5 सेकेंड से कर लो, बट ट्राई टू मेक इट 15 सेकेंड तक। 15 4 जा 16, यानी कि 60 सेकेंड में आपने सिर्फ 4 ब्रेथ लिया। तो हमारा टारगेट ये है कि 15 सेकेंड तक हमें लेना है। और उज्जयी ब्रेथ लिया तो बहुत अच्छा है। उज्जयी ब्रेथ आप सबको पता है, नहीं पता होगा तो आगे के सेशन में बात करेंगे हम। या नॉर्मल ब्रेथ भी ले सकते हो। अभी देखिए मैं ब्रेथ लेके बता रहा हूँ आपको कैसे लेना है। पहले एक लंबी गहरी सांस लेना है, आपको आंखें बंद रखनी है और छोड़ देना है रेगुलर। अब एक ही ब्रेथ को, अभी जैसे कि हमारी ब्रेथ की कैपेसिटी सपोज 70 सीसी है, तो 70 सीसी को हम ब्रेक करके लेंगे। या समझो 100 सीसी है, तो 100 सीसी को हम लोग 25 25 25 25 एक साथ सांस नहीं भरना है। हम थोड़ा सा भरेंगे, फिर रुकेंगे, फिर थोड़ा भरेंगे, फिर रुकेंगे, फिर थोड़ा भरेंगे, फिर रुकेंगे। 4 स्टेप में लेना है। और एक्सेल फिर आपको मुंह से ऐसे करना है। मैं भी बता रहा हूँ आपको कैसे करना है, फिर साथ में करेंगे। पहले लॉन्ग डीप ब्रेथ इन and let go. Now one breath we have to take in 4 steps, and in each step we will take little breath and we'll stop for between 5 to 15 seconds. So we can take it back. Close your eyes. पहले आप देख सकते हो, क्योंकि हर एक ब्रेथ को फील करना है। अभी मैं ले रहा हूं। ठीक है, आप ऐसे एक्सेल कर सकते हो जो बिगिनर्स हैं। लेकिन एडवाइजेबल ये है कि यू जस्ट एक्सेल फ्रॉम योर बोथ नॉस्ट्रिल। ठीक है। एक बार वापस बता रहा हूं मैं आपको। फिर से लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। मैं ऐसे अगर कर रहा हूं, मतलब मैंने यहाँ पे श्वास को थोड़ा सा लिया, यहाँ तक रोक लिया, फिर मैं थोड़ा सा ले रहा हूं, फिर सांस को रोक रहा हूं। मैं एक्सेल नहीं करना है, ये बात क्लियर रखना। श्वास को मैंने लिया और छोड़ा नहीं है, मैंने थोड़ा सा लिया और यहाँ पे मैं होल्ड किया फॉर 15 सेकेंड। आप 5 सेकेंड्स भी कर सकते हो, स्टार्ट फ्रॉम 5, बट टारगेट शुड बी 15 सेकेंड। फिर यहाँ पे मैंने श्वास को होल्ड किया, और पूरा अपना जो ध्यान रखना है यहाँ पे रखना है आपको, ब्रेन के ऊपर। यहाँ पे ऊपर पार्ट आपको जो पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, सब यहाँ पे अपने ध्यान को रखते हुए ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है फॉर 15 सेकेंड। अगेन टेक सम ब्रेथ, 15 सेकेंड, ऑब्जर्व योर ब्रेथ, और यहाँ पे पूरे ध्यान को रखना है। और ऐसे एक बार वापस बता रहा हूँ मैं। और फिर मुंह से, पर नाक से छोड़ा तो बहुत अच्छा है। अभी मैं नाक से छोड़ के बताऊंगा। अगेन आई एम टेकिंग लॉन्ग ब्रेथ इन एंड लेट गो। नाउ लेट अस स्टार्ट। अच्छा, some people are thinking me that it's not very clear. अगर आप एक्सेल होल्ड ऐसे कर करके बताओगे, then I think people will be clear. देखिए कैसा है, हमको जो ब्रेथ लेना है, हमने श्वास को लिया
और छोड़ना नहीं है। एक ब्रेथ को जैसे हम लेते हैं और छोड़ दिया, दिस इज वन ब्रेथ। अभी ये सेम ब्रेथ अगर मैं ले रहा हूं ना, तो मैंने पूरा ब्रेथ लिया, ठीक है, पूरा लंग्स को हम लोग कैसे भरते हैं, एक ब्रेथ में, एंड रिलीज। अभी यहाँ पे ना पूरा नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है। So it is better start with the 3 break or 4 breath. 4 is the maximum, which is your ultimate goal. So you can take 3 or 2. पहले slowly start कर सकते हो। अभी यहाँ करना क्या है, थोड़ा सा ब्रेथ लेना है और आपको होल्ड करके रखना है उस ब्रेथ को, जितना टाइम आप होल्ड कर सकते हो। स्टार्ट विथ 5 सेकेंड। अभी समझो मैं आई एम ए न्यू बिगिनर, सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक ए स्मॉल ब्रेथ। मैंने होल्ड कर दिया यहाँ पे 5 सेकेंड के लिए, फिर मैं थोड़ा सा और ब्रेथ लूंगा and hold it for 5 seconds. Don't exhale, hold. Again, I will take little breath, final, and hold for 5 seconds. And last, release from mouth. Clear? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एक बार आप समझ जाओगे, बहुत इजी है और बहुत मजा देगा। ब्रेन को पूरी तरह से एकदम आपको ऑक्सीजन से भर देगा, एनर्जी को पूरा बोलते ना पंच कर देगा माइंड के अंदर। ब्रेथ, एक ही ब्रेथ को आपको ब्रेकअप में लेना है, ब्रेक करके लेना है, 3 में या तो 4 बार में, in 3 times or 4 times. You just take one single breath and you're exhaling. This is a normal breathing. Here, one breath we are taking in 3 steps. Little, hold it, again little, hold it, again little, and hold it. So you can take in 3 steps. You first start with the 3 step. देखो, एक ब्रेथ अगर आपने लिया, पूरा अगर ले लिया ना, तो आप दूसरा ले ही नहीं पाओगे। जैसे मैंने लिया, लंग्स भर गए, तो मैं पूरा ब्रेथ के बाद और कहाँ खींचूंगा। मतलब अगर बाल्टी है आपके पास, अभी बता रहा हूं, एक बाल्टी है और एक बाल्टी में समझो आपको 4 नल से पानी भरने हैं, ठीक है। अभी एक बाल्टी मैंने नल चालू किया और अगर पूरे बाल्टी को मैंने भर लिया, फिर दूसरे बाल्टी में अगर मैं लेके जाऊंगा वहां पे नल के नीचे, तो पानी बाहर आएगा। तो हमारे लंग्स को पूरा नहीं भरना है। यहाँ देखो, लंग्स की एक्सरसाइज नहीं है, दिस इज फॉर द ब्रेन, ठीक है। तो लंग्स को ना, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो, जो श्वास, जो ब्रेथ हम लोग ले रहे हैं, उसको बहुत ही स्लोली लेना है, बहुत स्लोली। हमें लंग्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है। बहुत लोग सोचेंगे, लंग्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, फेफड़े को नहीं भरना है, हमें भरना है, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। आप एक ब्रेथ को सिर्फ ऐसे लो, रिलैक्स होके, बहुत रिलैक्स रखना है, फिर उसी को थोड़ा सा और लो, फिर रिलैक्स हो जाओ। यू टेक इट फॉर 5 सेकेंड, फिर थोड़ा रिलैक्स हो। सांस को छोड़ना नहीं है, डोंट एक्सेल, खाली ब्रेथ को लेना है हमें बस। और फाइनल काउंट जब पूरा हो जा रहा है, पूरा ब्रेथ बॉडी के अंदर आ रही है, देन यू एक्सेल। इसका वीडियो है मेरे चैनल पे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप जाओगे, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल सतीश शर्मा योगा हेल्थ और सतीश शर्मा, तो वहां पे टर्टल ब्रीथिंग प्राणायाम आप डालोगे तो बहुत होगा। अब मैं चाहूंगा सब जन एक साथ करते हैं, लेट अस डू फॉर 2 राउंड, ओके, एवरीवन रेडी? लेट अस रिलैक्स, स्पाइन शुड बी इरेक्ट। सब जन अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइन शुड बी इरेक्ट। A long deep breath in and let go. अभी दोनों हाथों को हम लोग ध्यान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे। एक के ऊपर एक हाथ को रखेंगे, जैसा मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। अपने नीचे वाले हथेली को, ऊपर वाले हाथ को एक दूसरे को रखेंगे और अंगूठे को, थंब को एक दूसरे से स्पर्श करेंगे। वंस अगेन, a long deep breath in and let go. अब पूरा ध्यान अपने ब्रेन के पास लेके जाना है और अब एक ही श्वास को हम लोग 3 बार में लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेंगे और 5 सेकेंड रुकेंगे, फिर लेंगे, फिर लेंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ। टेक ए लिटिल ब्रेथ, होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड, अगेन टेक ए स्मॉल ब्रेथ, होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड, फाइनल टेक ए वन लास्ट इंस्टॉलमेंट, कंप्लीट ब्रेथ इन and release from both the nostril. Very good. Once again, take a long deep breath in and let go. पूरे सांस को लेंगे एक बार और, अंदर लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। सेकेंड राउंड के लिए तैयार होंगे, आंखें बंद, बहुत ही थोड़ा सांस लेना है अंदर और रोक के रखिए, होल्ड कीजिए 5 सेकेंड के लिए। ओके, फिर से सांस भरेंगे थोड़ा सा, 5 सेकेंड के लिए रोक के रखिए।
Hold it for 5 seconds. Very good. Take a last installment. पूरा सांस लेंगे. Hold it for last 5 seconds. And release. Relax. Slowly and gradually you can open your eyes. लगा थोड़ा अच्छा फ्यूल पंचिंग? तो ये प्रैक्टिस करना आप बहुत ही अच्छा है. ये प्रैक्टिस करेंगे ना, आप बिलीव करो लाइफ में कभी भी ब्रेन स्ट्रोक किसी को नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो हमारे हार्ट से जो नाड़ियां जाती है ना, सुई के धागे से भी बहुत कम है. हाउ मेनी टाइम्स? यस, सी इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टेंडेंसी. एज आई टोल्ड, कोई भी प्राणायाम आप करते हो तो मिनिमम 10 मिनट्स आपको करना ही है. 10 मिनट आपको करना चाहिए, या 5 मिनट कर सकते हो, या आप ज्यादा. जी सतीश जी, पीपल आस्किंग क्या टाइम करना चाहिए? सुबह सुबह करना चाहिए व्हेन वी डू आवर मॉर्निंग क्रिया योगा? ये कभी भी कर सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. व्हेनेवर यू गेट टाइम. बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सराउंडिंग होना चाहिए, वहां का एयर थोड़ा अच्छा होना चाहिए. मतलब कि आप जैसे कि कहीं पे वेट कर रहे हो, डस्टी है, पॉल्यूशन है, तो वहां पे ये नहीं करना है हमें, क्योंकि यू आर टेकिंग द प्योर ब्रेथ एंड सेंडिंग टू योर ब्रेन. तो वो नहीं करना है. इट इज बेटर मॉर्निंग में किया तो बहुत अच्छा है. गार्डन्स में हो गया, घर में हुआ वैरेंडा में, या शाम को आप कर सकते हो, ऑफिस में भी कर सकते हो. बट टेक केयर कि आजू बाजू में डस्टी एटमोस्फेयर नहीं हो, पॉल्यूशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम प्योर इंटेक करके दे रहे हैं वहां पे. तो वो ध्यान रखना है. और 10 मिनट किया, और उसके बाद जो है ये जो प्रोसेस मैंने बताया, हाथों को आपको ऐसे ध्यान मुद्रा में ऐसे रखना है नीचे. फिर आप थोड़ा सा सर को, अगर चेयर है तो वहां पे ऐसे, या तो ऐसे थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, सी लाइक दिस. आपको लगेगा ना कि आपका वापस से जन्म हुआ है, इतना आपको एनर्जी आ जाएगी. We can do this स्ट्रेस, in Ujjayi also. Those who know Ujjayi breathing, they can एक्चुअली do that. उज्जयी इज मोस्ट पावरफुल ब्रीथिंग टेक्निक. उज्जयी से करेंगे ना तो यू कैन होल्ड इट फॉर मोर सेकेंड. नॉर्मल ब्रीथ क्या होता है, फटाक से लंग्स भर जाते हैं. उज्जयी मीन्स कि आपके लंग्स को भी एक्सपांड करता है और ज्यादा टाइम तक आप ब्रेथ को ले सकते हो. तो आई विल एडवाइज यू कैन गो फॉर द उज्जयी ब्रेथ. उज्जयी ब्रेथ इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक. उसकी भी वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर, सतीश शर्मा योगा. I तो think आप Satish ji, I think Ujjayi breath should be learnt in a happiness program under या Gurudev. So yeah. सो दैट इज दैट. सो ये है हमारे ब्रेन के लिए. इट इज वेरी मच पावरफुल ब्रीथिंग टेक्निक. देखो, आपका अगर ब्रेन आपके कंट्रोल में आ गया, आप जो खाना खा रहे हो शरीर के अंदर अगर वो लग रहा है, आपके बॉडी के अंदर पूरी फूड आपकी जो खा रहे हो सब अच्छे से जा रहे हैं, सेल्स को अच्छे से जा रहे हैं, तो बॉडी को और क्या चाहिए? फिजिकली मेंटली इफ यू आर बोथ फिट, तो और तो कुछ चाहिए ही ना. लोगों को यही तो चाहिए कि आप फिजिकली फिट रहो, मेंटली स्ट्रांग रहो लाइफ में. तो और कुछ नहीं चाहिए. मेंटली स्ट्रांग के लिए ब्रेन हमारे पास होना चाहिए. फिजिकली स्ट्रांग के लिए आपके सेल्स, आपके इंटरनल ऑर्गन्स 100% एकदम हेल्दी होनी चाहिए. और उसके बाद फिर अगर आप मेडिटेशन कर लेते हो तो फ्लाइंग मोड में एकदम दुनिया की सारी खुशियां आपको मिल सकती हैं. ये मेरा दावा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट आते हैं अबाउट की फैट जिनको है. आई एम ऑडिबल ना? आवाज आ रही? आई एम ऑडिबल? ओके. लास्ट आते हैं इसके ऊपर कि वात, पित्त, कफ, यानी सब दोषा जो होते हैं बॉडी के अंदर, उसको कैसे बैलेंस करना चाहिए. तो सॉरी, वो मुद्रा प्राणायाम में है जिसे मैंने बताया कि दिस 5 फिंगर्स, ठीक है, ये हमारे बॉडीज को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे मैंने ये बताया कि ये हमारे बॉडी का फायर है. आपने देखा होगा, अगर आपको याद नहीं आता है, तो आपको चलो एक आइडिया बताता हूँ कैसे करने के लिए कि फायर किसको बोलते हैं. कोई आपको बोलता है यार तूने तो आग लगा दी ब्रदर, एकदम सुपर. आग लगा दी मतलब अंगूठा, सबको याद हो गया, ठीक है. उसके बाजू में ही वायु है. फायर को जलाने के लिए आप गांव में देखोगे तो फूकते थे वो चूल्हे में यहाँ पे. तो फायर के बाजू में एयर हो गया आपका, वायु. सबसे बड़ी उंगली जो है मिडल फिंगर, ठीक है, मिडल फिंगर. सबसे बड़ा हमें क्या दिखाई देता है? आकाश. तो ये हो गया आकाश. पृथ्वी, दिस रिंग फिंगर, अर्थ एलिमेंट ऑफ बॉडी, जिसमें आप रिंग फिंगर बोलते हो. और आप सबको ध्यान रहेगा, जब हम स्कूल वगैरह में रहते थे, छोटे बच्चे थे, तो हम लोग टीचर को बोलते थे मैम कैन वी गो फॉर दिस. तो ये हमारा वाटर एलिमेंट्स है बॉडी के, हमारे जल तत्व को बताता है. अब अग्नि, वायु, आकाश और ये पृथ्वी और ये पांचों को आपको अंगूठे के देखिए यहाँ पे ऐसे रखना है, ठीक है.
मतलब ये अंगूठे पे सारी उंगलियां आपस में स्पर्श होनी चाहिए इस तरह से, और उसे फिर आपको अपने नीज के ऊपर रख देना है। ऐसे मैं बता रहा हूं आपको, ये नीज के ऊपर ऐसे आप रख दोगे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये मुद्रा में आपको आना है, या दिस मुद्रा, और इसको आप अपने नीज के ऊपर रख दोगे। अब ये आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हो, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे आपको आंखें बंद रखनी है और अपने पूरे ध्यान को, सब जन करते हैं साथ में, लेट अस क्लोज योर आईज, यू कैन मेक दिस पोस्चर, योर थंब एंड ऑल फिंगर्स टुगेदर। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि थंब से हर एक फिंगर का आपस में मिलना जरूरी है चारों तरफ से, और उसे आप इस तरह से आराम से बैठ सकते हो। एंड टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो। नाउ you have to take a deep breath each and every time and release it as much as you can comfortably. श्वास हमें लेना है, सपोज हमने 4 काउंट में लिया और 6 काउंट में छोड़ना है, जैसे भी मैं ले रहा हूं, एंड 6 काउंट में एक्सेल। यानी कि अगर मैंने श्वास को 4 काउंट में इनहेल किया तो स्लो प्रोसेस में उसको 6 काउंट में एक्सेल करना है। अगर उज्जयी ब्रेथ में किया तो बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है, otherwise you can do the normal breath. So let us do, everyone try to take full your lungs with the 4 count and exhale it in the 6 count. Exhale जो करना है नाक से ही करना है, through your nostril, don't with the mouth, मुंह से नहीं करना है, मुंह बंद ही रखना है आपका, नाक से ही श्वास लेंगे। Let us start now. A long deep breath in and let go. Let us get ready for the process. Now inhale from both the nostril up to 4 count and release the breath in 6 count. Once again, continue the process. कंटिन्यू करते रहें, 4 काउंट में श्वास लेना है, रुकना बिल्कुल नहीं है। 4 काउंट में श्वास लिया और 6 काउंट में आपको ब्रेथ को एक्सेल करना है। यू हैव टू इनहेल इन 4 काउंट एंड एक्सेल इन ए 6 काउंट। अब पूरे ध्यान को जो है अपने अंगूठे और उंगलियों पे ही रखेंगे, मुद्रा के ऊपर रखेंगे, और ब्रेथ को लेते रहें और छोड़ते रहें। श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है, पूरा ध्यान आपका मुद्रा पे, समान मुद्रा जिसे बोलते हैं, इट्स कॉल्ड ए समान मुद्रा। कंटिन्यू विद द ब्रीथिंग टेक्निक। श्वास लेना है 4 काउंट में और 6 काउंट में छोड़ते रहना है। कंटिन्यू द प्रोसेस। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसे आने देना है, अपना ध्यान सिर्फ ब्रेथ के ऊपर लगाना है, श्वासों के ऊपर। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ and feel the energy in your body. You can feel some energy is creating in your body, moving towards upwards on your face. Whatever thoughts are coming in your mind, let it be. You just observe your breath. कंटिन्यू करते रहेंगे, पूरा ध्यान अपने श्वासों के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 काउंट में हमें श्वास लेना है और 6 काउंट में श्वास को बाहर की तरफ डालेंगे। Whatever thoughts are coming, let it be. जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, न उन्हें रोकना है न टोकना है। नाउ रिलैक्स, आंखें बंद ही रखेंगे और सारे उंगलियों को रिलैक्स कर देंगे। ओपन पाम्स टूवर्ड्स द सीलिंग,
हथेलियों को खोल देंगे, आंखें बंद ही रखना है, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी और शरीर को थोड़ा सा ढीला छोड़ सकते हैं। अपनी हथेलियों को ओपन कर देना है, मुद्रा से रिलीज कर देंगे, बट आंखें को बंद रखेंगे। आंखों को बंद ही रखते हुए यू जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ फ्रॉम बेली बटन टू द नॉस्ट्रिल। अपने नाभि से लेके दोनों नासिका तक अपने श्वासों को महसूस करना है। श्वास आ रही है और जा रही है। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ फ्रॉम द बेली बटन टू द नॉस्ट्रिल एंड फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू द बेली बटन। अपने श्वास को दोनों नासिका से लेके नाभि तक और नाभि से लेके नासिका तक सिर्फ साक्षी भाव से उसे देखेंगे, महसूस करेंगे और विश्राम करेंगे। शरीर को थोड़ा और ढीला छोड़ सकते हैं और शरीर में हो रही ऊर्जा को महसूस करें। द एनर्जी क्रिएटेड इन योर बॉडी। ऑब्जर्व द ब्रेथ, ऑब्जर्व योर माइंड, सराउंडिंग। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसे भी आने देना है और सहज भाव से स्वीकार करना है। पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर, अपने श्वासों के ऊपर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, और धीरे से अपने आंखों को खोल सकते हैं। You can open your eyes slowly and gradually. So this is a very beautiful technique. It's called a समान मुद्रा। समान मुद्रा यानी कि शरीर की सारी वात, पित्त, कफ को समान रूप में उसको बैलेंस रखना है। वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। और ये करने के बाद जब आप ब्रेथ ले रहे हो, I think Sarpriya Bhaiya had a question. Do we stop after inhalation or we continue? That's clear, right, Bhaiya? yeah. After doing this, you can just meditate a little bit. थोड़ा relax बैठ जाना है and just go this thing. So I think we have completed today 1 hour का session. If any question is there, so we can take it. I think fantastic session, Satish ji, and much beyond what I had expected. And as promised, for the group, we will come back to do another session. We promise you 2 free sessions. So second free session, Satish ji has been very kind to offer, maybe 3rd week or sometime after Diwali. And we wanted to do a paid 5-day, pura ek, jaise kehte hain na, shivir, 5-day shivir, 6 to 7, whatever time or in the evening or morning we can do with you, Satish ji. But I'd like that to be paid because, any gyan that we get, anything that we get, chota amount, but I think it's the commitment amount for us. So that, all this beautiful seva you're doing, Satish, with your job and everything. So, and all the art of living seva that you do all the time. So I think it'll be important to do that. So yes, daily chanting group पे आप लोग added हैं, आपको information आ जाएगा, उसका मैं summary डाल दूंगी group पे. If you're not there on the group, you can join our group. Let me know, I can put you on the broadcast. And we keep doing a lot of health series. हमने last plants पे session किया था. Sugandha ji is here. She did a fantastic session on how you can heal through plants. But I think Satish ji, this is one of the best sessions I've ever facilitated. मैं हम लोग करते रहते हैं daily chanting group के, and Kamlesh aunty is, she's witness to this. हम क्या क्या करते रहते हैं, Aflatuni and Asha is there. All of us are here. But this is, I am so happy. Yeah, we are wellness teachers. I think Kamlesh aunty ने हमने भी आज कितना सीखा है. We learned something new. So Satish ji, thank you so much. God bless you. And any questions for Satish ji, please do share with us. And Satish ji, if you can just type in your YouTube channel name once again. Yeah. So my YouTube channel is as my name is as, if you'll type Satish Sharma, it will going to show you. Or whatever I explain you, all this detail is there on that channel. Like as I told you about the Ujjayi breath also, it's there. And turtle breathing pranayam is there. As well as the how to digest your food in 2 minutes before eating your food. You should clear your this one side का नाड़ी, मतलब कि sun जो सूर्य नाड़ी उसको activate करने के लिए, and many more, even the lots of benefit how to take the sun bath जो हमने discuss किया वो, और oiling the navel, नाभि में कौन सा तेल लगाना है आपको, उसका फायदा क्या होगा वो भी है वहाँ पे. तो just you go on to the YouTube and there you can type the Satish Sharma Yoga. You will get my channel and you can subscribe.
all details are there and you can take the benefits. And definitely it's a very nice to meet you all. और गुरुजी का जो मिशन है spread the happiness, क्योंकि देखो मन अगर स्थिर है आपका तो दुनिया की हर एक ताकत आपके साथ है और नेचर भी हमें सपोर्ट करती है। मेरा मानना ये है कि जब आप बहुत कामयाब होते हो तो मन बहुत चंचल होता है, वो आपको इतना ऊपर लेके जाएगा और इतना ऊपर लेके जाएगा, आपके अंदर ईगो भरेगा, घमंड भरेगा, तू ऐसा है, तू ऐसा, यू कैन डू दिस दैट एंड ऑल, और आपके अंदर फिर वो ईगो आता है। तो उस सक्सेस को मेंटेन रखना, वहां पे भी मन को संभाल के रखना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब थोड़ी अनसक्सेसफुल लाइफ में आती है, जैसे कोविड सिचुएशन आया, मन फिर क्या करता है, आपको ब्रेक करता है, यार सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रहा, आपका मनोबल तोड़ेगा। लेकिन वहां पे भी मन की स्थिति को पकड़ के रखना है। जब दोनों स्टेज में आप मन को काबू में रखते हो ना, तो नेचर स्टार्ट सपोर्टिंग यू, और वो तब होता है व्हेन यू फिट फ्रॉम द फिजिकली मेंटली। सो कीप फिट, कीप योरसेल्फ वेरी फिट एंड फाइन, कीप स्माइलिंग। कुछ भी हो जाए, गुरुजी बोलते हैं मुस्कान बना के रखो, और वो हमें बना के रखना है, ताकि जो तकलीफ आई ना, वो भी बोले यार ये आदमी तो बहुत जटिल है, इसके पास जाओ ही नहीं, वैसा होना चाहिए। So you can subscribe my channel, Satish Sharma Yoga Health. It is Satish Sharma. If any need is there, my number is already there with Juhi Didi, so you can take with her, and I'm available all the time. Thank you so much. सतीश जी, एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए भी कर पाएंगे, बिकॉज ऐसे काफी लोग हैं जो बहुत काम करते हैं, ट्रैवल करते हैं, मल्टीटास्किंग करना पड़ता है, एकदम दिमाग का वो होता है। सो अगर एक ऐसा मुझे लगता है हमने भी जो भी थोड़ा बहुत सेशन किया, हमने कहीं पे बॉडी को स्ट्रेच नहीं किया, कहीं पे कोई ड्रिंक नहीं लिया, कोई टैबलेट नहीं लिया, हमने सिर्फ ब्रेथ के ऊपर काम किया, थोड़ी सी प्राणायाम मुद्रा। आई होप कि सबकी एनर्जी लेवल थोड़ी हाई हो गई रहेगी, माइंड काफी रिलैक्स हुआ रहेगा सबका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि अगर हम थोड़ा सा जागरूक हैं, और जैसे मैंने बताया मुद्राओं में बहुत शक्ति है। अभी आज टाइम नहीं था, नहीं तो एक मेरे पास था सूर्य मुद्रा, जिससे कि आपकी वेट लॉस, बॉडी के अंदर फैट कम होंगे, बॉडी आपकी बहुत मस्कुलर हो जाएगी, मस्कुलर होगी अगर आप सूर्य मुद्रा, या ये भी वीडियो है मेरा वहां पे, सो यू कैन गो। और बहुत जल्दी मिलते हैं, बोलते हैं ना थोड़ा एक स्लोली ग्रेजुअली जाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। मुद्रा, मैं मुद्रा का पूरा सेशन लेती हूँ 6-7 घंटे का, बट आई नो तो मैं नहीं जानती हूँ, शायद वो ये है हाउ टू सीक्वेंस देम, लाइक कौन सी मुद्रा के बाद क्या, फिर कितना विश्राम। सो वी वुड लव टू अटेंड दैट विद यू सम टाइम। No, we will have that all in upcoming sessions में सब करेंगे ना, definitely we'll do it. So it's a very beautiful and very nice to see you all, and I feel कि सबने काफी थोड़ा अपना मन को स्थिर करके एंजॉय किया होगा, सबको मजा आया, everybody in love. Thank you so much. You can actually, I'm unmuting everyone, मतलब ज्यादा सब लोग एक साथ नहीं जाएं unmute पे, but if you want to share something, please do share any feedback, any request, anything. Yeah, you can unmute now. Yeah. Last. बहुत ही ऑसम था, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। सतीश जी, मैं भी 18 साल से हूँ आर्ट ऑफ लिविंग में, 15 साल से टीचर भी हूँ, वेलनेस टीचर भी हूँ, पर कुछ चीजें आपने ऐसी बताई हैं जो मैंने वहां भी अभी तक नहीं थी सीखी है। टर्टल प्राणायाम, देन ये वाली मुद्रा, दूसरी वाली। तो मुद्रा में मुझे वैसे भी बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मुद्रास बहुत जल्दी हीलिंग करती हैं। मुझे भी फैट की प्रॉब्लम है, तो मैं वो आपसे सेशन भी लेना चाहूंगी। जैसे जूही ने बोला 4-5 दिन हम करना चाहेंगे ना। Yeah, anyone else? Thank you very much. Very informative, very nice session, and grateful to you from heart. God bless you. Yes. Very nice. Satish ji, best session. Very informative. Turtle head. First time suna. I'll put this down nicely and give it to Stinky. आपकी आवाज नहीं आ रही सतीश जी, आप म्यूट हो गए लगता है। सतीश जी हाँ म्यूट करिए। आप जो बोले हो कुछ नहीं सुना हमने। अभी आ रही है? अब ठीक है। Yes. मुझे यही तो चाहिए, आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए, जो मुझे बहुत स्ट्रांग करता है और मुझे और भी इंथुसियाज्म से भर देता है। ये आप जो आपका प्यार, आपका विश्वास, और बोलते ना आप अगर ज्यादा फिट हो गए तो मुझे उसका ज्यादा बहुत, इट्स लाइक मिरेकल फॉर मी। नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा, और ऐसी चीजें हमें बहुत इंस्पायर करती हैं, और वी लव टू ज्वाइन। Thank you. Very nice. Thank you so much. Thank you. To learn and absorb today. Thank you very much. Bye.
I already Satish, once that you told about navel, this thing exposing to sun, it's a Yeah. wonderful, wonderful, wonderful exercise. Wonderful. Thank you, sir. Thank you so much. That detailed video is there on my YouTube. What is the process? How to expose and how to breathe in and what to do. That complete process is there. You just go on that channel, Satish Sharma Yoga Health. You will find out there. It's there. Also, something Thank for you. kids if Thank can you. include next time, please. We'll come back Definitely. with the next session. We'll come back. We'll plan something and we'll come back. Yeah. Something for Last the little ones too. Some basic breathing or something. Which one? Something for kids, I have little boys. Yeah, And yeah, then yeah. I do see See- something like any basic thing would also help. Kids are already full of energy. They don't require that things. So Ulta if bolte na yaar somebody ki- has digestion issues or something like that, kids too have the gastroenteritis. What is the problem. age? What is the age? 5 years. Acha, 5 years. So you do one thing. You just put that mustard oil. Mustard oil means ki kachi ghani ka tel, not that filter and refined one. I use That- only kachi. हाँ, but I will advise कि don't put that also. You just put if you get देसी cow ghee. अगर देसी गाय का घी मिल रहा है, देसी cow ghee is very much effective for the kids. Just put on the navel, नाभि पे करना है. Lots of benefit is there. That also videos I am having on the YouTube. You can go through that. So हमारे शिशी तत्व में मिल जाएगा ना, शिशी तत्व क्या ना, देसी गाय का देसी प्योर घी, प्योर एकदम प्योर. प्योर 3000 रुपीज किलो मिलेगा, पर ब्यूटीफुल घी और बिल्कुल मेडिसिन की तरह वो अच्छा, आपको लगाना है थोड़ा सा ही वहां पे लगाना है. ड्रॉप्स लग- कुछ लगाना है आपको थोड़ा सा उसको मेल्ट करके, मतलब इन लिक्विड फॉर्म यू हैव टू पुट एंड व्हेन दे आर गोइंग टू स्लीप एट दैट टाइम, तो इट्स वेरी मच इफेक्टिव फॉर देम. बहुत अच्छा होगा. Thank you. और ये कैस्टर ऑयल पेन्स के लिए और ठीक है नेवल पे, क्योंकि मैं बहुत टाइम से लगा रही हूँ ये. See, castor oil is good for even bones, even for the female related with they are having the problems in their monthly cycle and all, cramps and all this thing. For that also it's very much useful. It's But a knee pain- natural. Ji, नी पेन्स और ये वो जॉइंट पेन्स, नी पेन्स. see today is what? 7th, we huh? will put a summary. Satish ji, we will put a summary on the group. I think we are getting late now. I think we Yes, have- yes. So- ठीक है, ओके. But we Thank will, you. we'll come back and please thank you for attending, taking out time on a Saturday. Satish ji, thank you. It was a working day. थैंक यू सो मच. Thank you so much. So grateful to you. It's all Guru grace that you could join us and share such beautiful knowledge. सतीश जी, अगर किसी तरह हम सेवा में जुड़ सकते हैं आपके साथ तो जरूर बताइएगा. बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ एक ग्रुप बना लेते हैं. We will make one group in the WhatsApp and definitely we'll touch there. So जो भी आइडिया So रहेगा. we have a group called Healing Naturally. We'll So, add please- everyone in that group. Yeah. So we will be in touch. Okay. Thank you. ओके, जय बाय. गुरुदेव. Stay blessed. जय माता. थैंक यू. जय हिंद. जय गुरु.